Hi Purnima. Hi Deepaji, how are you? I am very well. I can't seem to be. Namaste Chandraji, how are you doing? I'm fine. Uh, Purnima ji, I see her, but I don't see her video on. She may not have the video on. Yeah, possibly. Here she is. Good afternoon, Purnima ji. Good afternoon, Deepa. Good afternoon, everyone. Glad to have you today on the Earth Day. That's Like such a that's coincidence. yes, but that's my privilege. Such a coincidence. I agree. Yeah. So we have. I think we are finding. Vivek, are we able to go on live or no? Our host is out of station, so there's a bit of a miscommunication there. I would like to share my screen throughout my presentation. So please allow me Oops. whenever you are ready. Let me let me just wake him up, get him on the line then, because he has to give you the access. No, 1 minute. Yeah, yeah. Screen share. Vivek, she wants to do. Purnima ji wants to do screen sharing. How will we manage? I think I got the access, Deepa. Okay, then give her the clearance right now only. I think I got it. I can share it. I'm just checking. ठीक है. Okay, thanks. Bye. Can you see my screen? Yeah, yeah. He's actually attending a wedding in Patna. Ah. I've got him to do the recording and make sure that it's on. So I think his young son, is managing it for us today. Okay. Yeah. कोई बात नहीं. सो वेन एवर यू आर रेडी लेट मी नो. जब तक मैं स्क्रीन शेयर Eh, स्टॉप कर रही हूँ. Okay. आप जब बोलोगे तब करूँगी मैं. Okay. What I'm doing is I'm sharing the Zoom link या with the soil group or the garbage green. Which one do you want to share it with? both of them. Okay, fine. I, I'll I just share just it. yeah I just shared with Telegram group as well because there are 1,000 members there. But we have possibility only for 100 to join in, Purnima नहीं, ji. मैंने अब भी भेजा है तो कितने पढ़ेंगे कितने टाइम पे आएंगे पता नहीं है ना. तो 100 भर जाएंगे तो बंद हो जाएगा. क्या करेंगे. ठीक है, नहीं, I'll just share it with garbage and हाँ. Nisha, please admit the members who was signing in. Hello, Nisha. गुड आफ्टरनून दीपा जी. Good afternoon, सीमा जी, क्या हाल है आपके? एकदम अच्छे एक हैं. गुड आफ्टरनून पूर्णिमा जी. गुड आफ्टरनून सीमा. कैसी हैं. चलो, it's gone to both the groups. निशा, प्लीज एडमिट वगैरह कर लेना मेंबर्स को. Doing it. No worries. Okay, we'll wait for 2 minutes, Purnima ji, then we can start. या Yeah. या
Nisha, we are about 25 of us. I think we can start. People can keep on joining, you know. Yeah, sure. एक मिनट जी, ईला जी को भी चाहिए आपका. Let me just give it to her. So you have Ela ji joining us. Okay. Purnima ji, you are ready? Yes, I'm ready. Okay, let me just introduce you then. Yeah. Good afternoon, members. Welcome to today's session. Today is also Earth Day. So we are lucky that we've got Purnima ji to take us through soil. As I read in today's newspaper, there's this report by Lindsay, I don't know, I can't read her name. The lady who's written a report on your Earth solutions. She says, let's treat soil with respect. Conserving it will conserve humanity. And then she says, my chashma is giving me trouble. Soil enables us to live, eat, and breathe. Yet today, 2/3 of Earth's soil faces desertification. By 2050, 1 billion people could be soil refugees, but sustainable land management, from reforestation to regenerative agriculture, can still save Earth. And we are lucky and fortunate that we have Purnima ji with us to take us through this topic and tell us how we can do our bit individually and collectively. So Purnima ji, up to you to start, please. Yeah, thank you. Thank you so much, Deepa, and happy Earth Day to all of you. Can I just see everyone? Yeah. So always makes me feel like I'm speaking to the screen. Okay. So namaskar सबको और happy Earth Day. Today it really a coincidence, a very good coincidence that on Earth Day we are talking about soil. You all also must be knowing that there is a big movement across the globe, across the nations. It is called Save Soil. So Sadhguru from our country is traveling from country to country and on his motorcycle requesting to the governments to make appropriate policy changes so that the soil that gives us food is conserved and continues to give us food. So you can read and Google about this, otherwise this topic itself is lengthy. So it's my privilege and honor to be talking on this topic to the august gathering of gardeners like Floriculture Society of Noida and all other gardeners who will be joining us live today. So two requests. Since soil is very dear to my heart, I tend to speak in detail and I tend to speak longer for on this topic. So I have a PowerPoint presentation to show to you. So I'll take you through the PowerPoint presentation. So the first request is please hold your questions to the end so that I might cover what you actually want to ask. Second request is please keep your questions only to today's topic and not to general gardening, because today's if you understand today's topic very well, I think you understand 50% of the gardening is in your control, 50% gardening is in your control. Third request is, due to summer there are very electricity supply fluctuations in our society. So in case I drop out in between, don't worry, give me few seconds or meetings, I will rejoin with the same link. So no panic and don't leave till we finish. So having said that, I would ji I'll keep on muting people, Purnima ji. I think whoever joins late. yeah, okay. So I would like to take you through the PowerPoint presentation. मैं थोड़ा अपनी जैसे मेरी आदत है मैं दोनों भाषाओं में रखती हूँ मेरा presentation. और थैंक यू दीपा इंट्रोडक्शन के लिए भी, इस प्लेटफॉर्म को आज के दिन मुझे देने के लिए भी,
और सारी मेरी पूरी कोऑपरेशन करने के लिए थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जस्ट अ मोमेंट, या सो दीपा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जो ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के बेसिक गार्डन ट्रेनिंग में मैंने कवर किया था, उससे थोड़ा हट के, मतलब थोड़ा और आगे मैं कवर करूं, क्योंकि उतना बेसिक सॉइल के ऊपर मैं बहुत बार आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। सो आज आई एम ट्राइंग टू फिल इन द गैप्स, बिकॉज सॉइल इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ फॉर द एंटायर लाइफ टू परस्यू। सो आई विल बी टॉकिंग इन द गैप्स. So this is my first slide. Know your soil. That is April 22nd today, Earth Day, and happy Earth Day to all of you. And my name is Purnima Savargaonkar. Yeah. So shall I restrict this? If you are seeing my screen, I don't know if you are seeing all this viewers gallery as well. Deepa, are you seeing the viewers gallery? Is that hampering the? Okay, is this better now? Yes, okay. Okay, thank you. Good. Otherwise it hampers. Yeah, so what will we understand in today's lecture is what is soil and what makes soil. So soil and its constituents. So let me tell you, as Deepa said, there is an article on Earth Day, and everyone, right from United Nations to even the school children, have started speaking about depletion of soil, and because of deforestation and because of many things. So three causes, three reasons that I understand why the soil is depleting and why we are saying save soil. हम save कब बोलते हैं? जब हम distress में होते हैं. Save me, save world or something. So our soils are in distress. 3 कारणों की वजह से. एक तो डिफॉरेस्टेशन है ही, पर डिफॉरेस्टेशन हम करके कर क्या रहे हैं? हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं. सो ये जो आज मैं अपने इस घर में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ये पूरी सोसाइटी है. कभी न कभी किसी ज़माने में यहाँ पर या तो एग्रीकल्चर लैंड थी या तो कोई जंगल था, और उसी को काट के मैंने अपना मकान बनाया है. तो इन्हीं फॉरेस्ट को काट के हमने अपने अर्बन डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर किया है. सो इसलिए क्या ये डेवलपमेंट कहा जाना चाहिए, या क्या ये रिग्रेशन कहा जाना चाहिए, क्या ये प्रोग्रेस कहा जाना चाहिए, इस बात पे अभी सारे दिग्गज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस हैव स्टार्टेड स्पीकिंग. हमको अच्छे हाईवेज चाहिए, हमको अच्छे ब्रिज चाहिए, हमको अच्छे मकान चाहिए, हमको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए. सो वो सारी फैसिलिटी हम डीफॉरेस्ट करके और कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं. सो मेन कॉज ऑफ वरी ये है, क्योंकि जहाँ पे आप कॉन्क्रीटाइज करते हैं वहाँ पर सॉइल दब जाती है, मर जाती है. दूसरा, हम जो भी एग्रीकल्चरल लैंड बची है, उस एग्रीकल्चरल लैंड में हमने इतने केमिकल्स डाले हैं पिछले 50-60 सालों से कि अब वो केमिकल्स जो है वो रेसिड्यू बन के हमारे सॉइल में घुल गए हैं. अब वो रेसिड्यूज माने क्या? कोई भी केमिकल जो हम डाल रहे हैं, यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है, जो इवन जो दवाइयाँ हम खाते हैं, ये जनरली क्या है? ये सारे सॉल्ट्स हैं. सॉल्ट हमारे नमक. सो किसी भी चीज़ में जब नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ना खा सकते हैं ना डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो आप सोचिए, जब आपकी मिट्टी में नमक 60-70 साल आप डालते गए तो वो नमक वहाँ पर जो बैठ गया है, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मर गई है. इसलिए सारे लोग कह रहे हैं सेव सॉइल, क्योंकि अब ये जो फर्टिलिटी है वो सिर्फ इतनी बची है कि 2030 तक ही आप जिस कंडीशन में आज मिट्टी है, उस कंडीशन की मिट्टी में, और जो प्रैक्टिस आपकी पिछले 60-70 सालों की केमिकल फार्मिंग की हो रही है, उस अगर प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते हैं तो केवल 2030 से मैक्सिमम 2050 तक ही ये मिट्टी आपको अन्न उगा के दे पाएगी. हम है 2022 में. सो हमारे पास या तो 8 या तो केवल 28 साल बचे हैं. हमको यही कंटिन्यू अगर करना है तो खाने पे जहाँ पर सिविल वॉर्स नहीं होंगे, उसके लिए सिर्फ 8 या 28. ओके, सो देयरफॉर आई ऑलवेज फील कि जो भी हम जैसे गार्डनर्स हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, जो भी सॉइल को समझकर गार्डनिंग करते हैं, वो
पूरे एनवायरनमेंट की और पूरे स्पीसीज, नॉट ओनली ह्यूमन, ऑल द लाइफ फॉर्म्स अक्रॉस द अर्थ, इन द एयर, ऑन द सॉइल एंड अंडर द सॉइल, इन सब की हम सर्विस कर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गार्डनर. Only thing is you need to understand soil and then do gardening. So when you are doing gardening, you are not only growing flowers to decorate your house, you are not only growing food to eat and feed for your family, but you are doing a great service to your surroundings. Okay. So soil को बहुत अलग अलग मायनों में समझा जाता है. आज जो हम समझेंगे, soil as growing medium, plants को grow करने के लिए सॉइल जो चाहिए होती है वो क्या है. सो क्या है, दैट इज द बेसिक फैक्टर विच डिटरमाइंस हाउ हेल्दी इज योर गार्डन, दैट इज सॉइल. जो भी लोग सॉइललेस की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, एक्वापोनिक्स की बात करते हैं, हम सबको पता है कि उसके बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं. उसके ग्रोइंग कंडीशंस में लिमिटेशंस हैं, उसके कितनी वैरायटी ऑफ फूड आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, फूड या प्लांट आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है. सॉइल एक ऐसा ग्रोइंग मीडियम है जो अर्थ के ऊपर उगने वाली ऑलमोस्ट हर हरियाली को उगाती है. दैट इज व्हाट इज ग्रोइंग मीडियम, सॉइल. ओके, सो एक्चुअली अगर मैं आप लोगों से मुखातिब होती तो मैं हरदम आपको पूछती कि क्या सॉइल जिंदा है या मुर्दा. क्योंकि हमको हमारे स्कूलों में सॉइल इज अ थिंग ऐसा सिखाया गया है. सॉइल इज अ बीइंग, जैसे लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग, बट हमको सिखाया गया है सॉइल इज अ थिंग. So soil might be thing for all other fields of studies like civil engineering or like geological studies, but when it comes to biology, when it comes to gardener, when it comes to growing something, soil is a living entity. but ये कहने के लिए आपको मिट्टी की परिभाषा समझनी पड़ेगी. सो मिट्टी एक होती है धूल और एक होती है मिट्टी. दोनों शब्द हमारे ही भाषा के हैं. आप किसी भी भाषा में जाएंगे तो आपको धूल के लिए अलग शब्द मिलेगा और मिट्टी के लिए अलग शब्द मिलेगा. सो डर्ट माने धूल विच इज लाइफलेस, एंड सॉइल माने मिट्टी विच इज ऑलवेज लिविंग सॉइल, ब्रीदिंग सॉइल, फुल ऑफ लाइफ and always acting, reproducing, feeding, generating, regenerating. So जब तक आपके पास मिट्टी नहीं होगी तब तक आप पौधा नहीं ग्रो कर सकते. आप डर्ट में कभी भी पौधा नहीं ग्रो कर सकते. वो चाहे कच्छ के सॉल्ट पैन्स हो, वो चाहे राजस्थान के सैंड ड्यून्स हो, सहारा डेजर्ट का सैंड हो, जब तक उस डर्ट में, उस सैंड में, उस सॉल्ट पैन में कोई लाइफ नहीं आता नीचे, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तब तक कोई पौधा उस डर्ट में उगता नहीं है. सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड दैट डर्ट, धूल और मिट्टी, ये दो अलग चीज़ें हैं. ओके, सो नाउ नो योर सॉइल माने क्या. माने सॉइल का रंग रूप जाने और सॉइल की ग्रो करने की शक्ति के बारे में जाने. नो कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल and no fertility of the soil. So when we speak of fertility, we are definitely speaking about soil and we are not speaking about dust. So composition of the soil plus fertility of the soil is equal to fertile soil. Now what is composition? Composition माने हमको ये स्कूल में पढ़ाया गया था कि चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है और रेतीली मिट्टी होती है. सो कॉम्पोजिशन माने सॉइल का टेक्सचर, सॉइल क्या क्या चीज़ों से बनी हुई है. सो टेक्सचर इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्पोजिशन. ओके, नाउ कॉम्पोजिशन, व्हाट डज कॉम्पोजिशन टेल यू? Composition tells you about
particle size of your soil. What does particle size indicate? कि वो soil कितना air hold कर सकती है और कितना water hold कर सकती है. So composition of the soil tells you about particle size, about the mineral contents of the soil and also about organic matter of the soil. So ये तीन कलर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, रेत, सिल्ट और क्ले, तीनों का कलर देखिएगा आप. सो तीनों का कलर भी अलग अलग है. आंखों से देख के आपको पता चलता है कि तीनों का टेक्सचर अलग अलग है. आंखों से देख के आपको पता चलता है कि तीनों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है. और आंखों से ही देख के आपको पता चलता है कि कौन सी मिट्टी में एयर आसानी से अंदर बाहर हो सकती है, माने कौन सी मिट्टी पोरस है और कौन सी मिट्टी टाइट है जिसमें एयर अंदर बाहर होने में दिक्कत होती है. So these all aspects about just understanding your soil by just looking at it is mostly composition. Composition में एक और चीज आती है, composition में एक और चीज आती है soil color, है ना. सो हम बातें करते हैं नर्सरी से, जब भी पौधा लाते हैं तो हम बातें करते हैं कि अरे वो ना बड़ी काली सी मिट्टी थी, वो ना लाल मिट्टी थी, वो ना पीली मिट्टी थी. तो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने बोला कि सॉइल कॉम्पोजिशन जब आप पता करते हो, जानना चाहते हो, तो आपको सॉइल के मिनरल्स के भी बारे में पता चलता है. कैसे? जो भी सफ़ेद सॉइल होंगी उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है. सो जो भी कैल्शियम वाली सॉइल होंगी वो टूवर्ड्स वाइटिश होंगी. उसके बाद जो भी हाई आयरन कंटेंट्स वाली सॉइल्स होंगी वो टूवर्ड्स रेड होगी. और जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट्स या ह्यूमस कंटेंट्स वाली सॉइल होंगी वो टूवर्ड्स डार्क ब्राउन या काले रंग की होगी, डार्क ब्राउन या चाय के पत्ती की कलर, या जिसको डार्क चॉकलेट कलर कहते हैं. सो आपको सॉइल आपके पास, आप जैसे कोई नोएडा से है, कोई आज मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं. सो आप सबसे पहले अपने मिट्टी को जानने के लिए क्या करेंगे? मिट्टी की तरफ देखेंगे सबसे पहले. आँखों से देखने के बाद आप उसको छू के देखेंगे और छू के ये पता करेंगे कि क्या इन तीनों में से कौन से क्लास में मैक्सिमम आपकी सॉइल फिट होती है. और उसके बाद उसको और थोड़ा सूंघ के, पहले आपने आंखें यूज़ करी, उसके बाद टच यूज़ किया, उसके बाद में सूंघिएगा. सूंघने से आपको क्या पता चलता है? उसका ऑर्गेनिक मैटर पता चलता है. सो आपने क्या जान लिया? सिर्फ आँख, टच और नाक से सॉइल का कॉम्पोजिशन पता चल गया आपको. ये सब क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको धीरे धीरे आगे बता रही हूँ. अभी हम जानेंगे सॉइल की फर्टिलिटी. किसी भी खेत में जाने के बाद या एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ, या जो भी हमारा एजुकेशन हुआ है स्कूलों में, उसके साथ ये जो 3 ब्लॉक सॉइल के मैंने आपको आपके स्क्रीन पे दिखाए हैं, उसमें से किसी भी एक नॉर्मल एज के बच्चे को पता चलता है कि कौन सी सॉइल में पौधे अच्छे हो रहे हैं या कौन सी सॉइल को हम फर्टाइल कह सकते हैं. सो ये जो आपके स्क्रीन में आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में, बिल्कुल उसको वॉश करा के चल ले, यहीं पे करा. ओके. सो Fixed it. या थैंक यू. सो ये जो आपके राइट साइड स्क्रीन में दिख रही है, जो बड़ी फॉलिंग सी, क्रम्पलिंग सी, बड़ी लूज सी, एक के ऊपर एक ऐसे पता नहीं कैसे खड़ी है, ऐसी जो सॉइल आपको दिख रही है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि उसमें पौधे बहुत अच्छे से नहीं उग रहे हैं. उसके बाद ये जो दूसरी है जिसमें बहुत ज़्यादा गैप्स, बहुत ज़्यादा क्रैक्स और बहुत ज़्यादा नीचे तक दिख रहा है, उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर ग्रीनरी जो है ये कम दिख रही है आपको. और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सॉइल का अलग अलग लेयर आपको दिख रहा है.
सो नीचे की सॉइल जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्टेड है, उसके ऊपर की सॉइल का कलर भी बदल गया है, उसमें क्रैक्स भी थोड़े मॉडरेट क्रैक्स आ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्रैक्स का साइज़ बढ़ रहा है, पार्टिकल का साइज़ कम हो रहा है, और बिल्कुल टॉप लेयर में जाएंगे तो आपको चॉकलेटी ब्राउन कलर का एक लेयर दिख रहा है, और इसमें काफ़ी सारे पौधे उगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते हैं फर्टाइल सॉइल। सो ये जो सबसे ऊपर का ये जो बैंड आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तुरंत पौधों के नीचे, इस पार्ट को कहते हैं टॉप सॉइल। मैं जब भी ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के लेक्चर्स 2007 से अटेंड कर रही हूँ, तो इस शब्द का उपयोग बहुत बार होता है, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। और मुझे तब से एक अचरज होता था कि गुड़गांव जैसी जगह में, जहाँ पर हर घर में नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है ऑन एन एवरेज, या जो बड़े बड़ी वो बन रही है, मॉल्स बन रहे हैं, उनके नीचे 2 या 3 फ्लोर्स नीचे पार्किंग होती है, वहाँ पे हम ये टॉप सॉइल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतने अर्बन एरियाज में टॉप सॉइल बची नहीं है। टॉप सॉइल माने ये जो डार्क चॉकलेटी कलर का एक क्रम्पली मटेरियल आपको टॉप पे दिख रहा है, सॉइल के टॉप पे दिख रहा है, जिसमें डायरेक्टली पौधे आ रहे हैं, इसको कहते हैं गुड टॉप सॉइल। दिस इज जस्ट एज एन एडिशनल डेटा। सो दिस इज व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी, जो आप आंखों से पता कर सकते हैं। उसके बाद आप so soil fertility is also about how much food is available to your plants from your soil. So this is also a part of soil fertility. Now how will you find out कि how much food is available to your plant? So दोनों चीज़ें, सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल का कॉम्पोजिशन, आप सिंपल सॉइल टेस्ट से पता कर सकते हैं। सो ये जो सॉइल का टेस्टिंग है, वो सॉइल का टेस्टिंग आप, अगर आपके पास छोटे छोटे गार्डन है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास खेत है, बड़ा फार्म है, सो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं और लैबोरेटरीज में भी कर सकते हैं। सो एवरी गार्डनर इज एक्चुअली अ सॉइल साइंटिस्ट। पेन दियो वहाँ से, पेन 2 पेन तो शायद अंदर वाले सिस्टम पे चले गए। सो आप घर बैठे इस सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? सो एक तो हम पहले जानेंगे कि हमने इतना सब जाना क्यों, हमको क्या करना है, एक पौधा उगाना है, एक गमला लगाना है, और इतना सारा हमको जानने की क्या ज़रूरत है। उसका पहला रीज़न है, ये जो सारी दुनिया आज चिल्ला के आपको सेव सॉइल कह रही है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में जो एक्शंस करी है, उसी की वजह से जो हमारे अर्थ का सबसे बड़ा एसेट है, जिस एसेट की वजह से आज हमारे अर्थ पर लाइफ है, उस एसेट को हम डिप्लीट कर रहे हैं। इसलिए गार्डनर्स, अगर हम एक छोटा सा पौधा भी लगाना चाह रहे हैं और वो मिट्टी में लगाना चाह रहे हैं, सो अगर हम अवेयर हो के वो काम करेंगे, सो हम बहुत बड़ी सर्विस हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं। हम उनके लिए सॉइल बचाना समझ रहे हैं, हम उनके लिए वाटर बचाना समझ रहे हैं, हम उनके लिए प्यूरिफाइड एयर को रखना समझ रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम अ गार्डनर्स पर्सपेक्टिव, why do we need to test soil? सॉइल टेस्ट करने से आप किस पौधे में कितनी बार पानी दे सकते हो या कब पानी दे, मतलब पिछले 2 साल से जो मैं अपने लेक्चर्स कर रही हूँ, उस लेक्चर में 50 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस इनिशियली, अब कम हो गए, अब ज़रा लोग थोड़े टेक्निकल सवाल पूछने लगे हैं। सो 50 से 70% सवाल ये होते हैं कि पानी कब दूं, कितना दूं। 90% आपका पौधा मरने का रीज़न बताया जाता है या तो अंडर वाटरिंग और या तो ओवर वाटरिंग, और बेचारा गार्डनर परेशान हो जाता है कि मैं पानी दूं कि नहीं दूं। अगर मैं एक ग्रुप में पूछता हूं कि ये पौधा क्यों मर गया, पीला पड़ गया, तो कोई बोलता ओवर वाटर हो गया, उसके बाद में मैं पानी बंद कर देता हूं। फिर दूसरे ग्रुप में पूछता हूं कि भैया फिर ये पौधा मर गया पानी बंद करने से, तो क्या हो गया, तो बोलता है अंडर वाटर हो गया।
So what is right water for a plant? That is decided by your soil's water holding capacity. आपने पानी तो दे दिया, किंतु वो पानी आपके पौधे को मिला या मिट्टी के अनेरोबिक कंपोनेंट्स को मिला या गमले में से नीचे चला गया या पानी वहां पर रुक के आपके पौधों को उस पानी ने सड़ा दिया, ये कौन डिसाइड करता है? आपके मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसलिए मैं अपनी मिट्टी में कब कितना कैसे पानी दूं, इसका उत्तर है आपके पास कौन सी मिट्टी है ये पहले पता करें। दैट इज व्हाट इज टेस्ट योर सॉइल। Testing your soil also makes you understand what do you need to be adding to your soil. क्या डालूं, कितना डालूं, कब डालूं, लिक्विड मैन्योर डालूं। हम लोग सारे गार्डनर्स इतनी मेहनत करते हैं, क्या क्या भिगोते हैं, क्या क्या खाद बनाते हैं, और कौन सी तो सरसों की खली लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या हम नर्सरी शॉप से शॉपिंग करते हैं, और उसका कभी लिक्विड मैन्योर बना दिया, कभी फर्टिलिटी बना दिया, कभी पानी उबाल रहे हैं, कभी सिगरेट का तंबाकू उबाल रहे हैं, तो कभी उसका कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट बना दिया, तो कभी ड्रम में बना। क्या आपको इस सब की जरूरत है? वो पता नहीं। यूट्यूब पे बताया था इसलिए मैं कर रही हूँ, और किसी ने दिखाया था इसलिए मैं कर रही हूँ। एक दूर यूरोप और अमेरिका के एक वेबसाइट ने डाला था कि अगर आपको पीस लिली उगानी है तो आप ये डालो, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को पूछती हूँ। एक्चुअली मैं जवाब जानना चाहूँगी, पर ये सारे डिजिटल मीडिया का दिक्कत ये हो जाता है कि हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते इतने लाइवली जितना हम फिजिकली कर सकते हैं। आप ये बताएं कि आपके घर में सब्जी से फ्रिज भरा हुआ है और फिर आपके घर का कोई सदस्य बाहर से फिर से वही 5 सब्जियां लेकर आता है जो आपके फ्रिज में है, क्या होगा? आप चिढ़ोगे, आपकी सब्जियां बेशक खराब हो जाएगी। या तो आपके फ्रिज की सब्जी खराब हो जाएगी या तो जो लेकर आया है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि इतना आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तीसरा, कोई बंदा ऐसी चीज लेकर आता है जो आपके फैमिली का एक भी परिवार खाता नहीं है, आपके परिवार का एक भी सदस्य खाता नहीं है, तो क्या हो गया? फिर वेस्ट हो गया। तो आप ये समझिए कि आपके फ्रिज में, माने आपके सॉइल में क्या क्या है यही आपको पता नहीं है, और आप जी डाले जा रहे हो सरसों खली, नीम खली, ब्ला 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 ब्ला। आए दिन ग्रुप पे 90% ये डिस्कशन चलता रहता है व्हाट्सएप में कि मैंने वो बनाया, ये डाला, फिर मैं ये डालती हूँ, फिर मैं जून में ये डालती हूँ। अगर सही बात है, कोई मुंबई में डाल रहा है तो क्या आपको ये दिल्ली में डालने की जरूरत है? ये आपको पता करने के लिए it is very important that you should test your soil to know your soil. चलो आपको पता चल गया जी, आपके इसमें ना सरसों खली डालने की बहुत जरूरत है। कितनी डालूं? भैया उत्तराखंड में सरसों खली कोई 1 मुट्ठी डाल रहा है, तो क्या बंगाल में उतनी ही 1 मुट्ठी सरसों खली डालने की जरूरत है? क्या राजस्थान में वही डालने की जरूरत है? क्या कन्याकुमारी में, केरल में उतनी सरसों खली डालने की जरूरत है? इसका उत्तर आपको सिर्फ खुद ही दे सकते हो, ओनली बाय नोइंग योर सॉइल। सो नेक्स्ट क्या करें? घर में छोटी सी एक सिंपल ऐसी कांच की बोतल ले ले, जनरली जैम की बोतल आती है वैसी, जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, जो सिलेंड्रिकल बोतल हो, और जिसका ऊपर का जो रैपर है वो आपने निकाल दिया हो, ताकि पूरी बोतल आप सी थ्रू कर सको। अभी आपको समझने के लिए इस बॉटल में जो मिट्टी दिखाई गई है नीचे की 1/3 पे भरा हुआ दिखाई गया है, लेकिन आपको 1/3 नहीं भरना है। मिट्टी आप ऐसी बॉटल में भरोगे 2/3। कौन सी मिट्टी? जो भी मिट्टी आपके पास आज की डेट में है, जो अक्सर आप या तो गमलों में भरने वाले हो, या आपके गार्डन में ग्राउंड पे है, या आप छत पे लगाने वाले हो, जिसमें आप पौधे लगाने वाले हो, उस मिट्टी को इस शीशे की जैम की प्लेन बॉटल में 2/3 मिट्टी आपने भरना है, और पानी पूरा उस बॉटल में ऊपर तक भरना है। ये जो ढक्कन के रिंग्स होते हैं इसके नीचे तक ये पूरा पानी आपको भरना है यहाँ पर। उसके बाद में पूरा बॉटल वो पानी और मिट्टी मिला के पूरी तरह से आपको शेक करना है।
अच्छे से मिलाए, पानी और मिट्टी बिल्कुल अच्छे से, मतलब जैसे हम सर्फ वगैरह डाल के घोलते हैं ना, उस तरह से उस बॉटल को ढक्कन लगा के शेक करें। शेक करने के बाद आपको ये बॉटल छोड़ देनी है एक प्लेटफॉर्म पे, धूप से दूर, शेड में, घर में कहीं पर भी कोने में 24 घंटे के लिए इस बॉटल को बिल्कुल धक्का नहीं लगना चाहिए। उन 24 घंटों में ये मिट्टी जो है इस तरह से सेटल हो जाती है जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है? अलग अलग लेयर्स में ये मिट्टी सेटल हो जाती है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप 2-4 मिट्टियां ले लें, मतलब अपने घर की भी ले ले, अपने दोस्त के घर की भी ले ले, चाहे सड़क से उठा के भी थोड़ी कोई मिट्टी लेकर आए, वो मिट्टी भी ले ले, और 2-3 बोतलों में अलग अलग इस तरह से आप रख दे। आपको पता चलेगा कि हर मिट्टी अलग कैसे होती है। ये जो लेयर सेटल डाउन होते हैं 24 घंटे के बाद में, ये बिल्कुल कॉमन रूल के मुताबिक, उनका अपना एक रूल है, मिट्टियों का एक रूल है, वो साइंस के मुताबिक चलती है मिट्टी, इसी तरह से वो सेटल होती है। हेवीएस्ट पार्टिकल सबसे नीचे सेटल होते हैं, दोज आर ग्रेवल्स। उसके ऊपर थोड़ा उससे कम हेवी वाला पार्टिकल उसके ऊपर सेटल होता है, मतलब हेवीएस्ट एट द बॉटम एंड लाइटेस्ट एट द टॉप। इस बैंड में आपके मिट्टी का जो भी कॉम्पोजिशन होगा, द मिट्टी कैन बी अ मिक्स ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, or the soil can be only clay, or the soil can be only sand, the soil can be mostly silt and humus। ये सारा इसी ऑर्डर में सेटल होगा, heaviest at the bottom and lightest at the top। सो उसको जो आपकी आंखों को, आप जब इसको निरीक्षण कर रहे होंगे तो इस बॉटल को हिलाना नहीं है, आपको इस बॉटल को बिल्कुल बिना हिलाए देखना है। इसलिए फिर से आंखों का यूज करना है आपको। कितना मोटा पार्टिकल अगर नीचे दिख रहा होगा वो ग्रेवल, फिर उसके ऊपर सैंड, सैंड के ऊपर फाइन सैंड, फाइन के सैंड के ऊपर सिल्ट, सिल्ट के ऊपर का एक लेयर इसमें दिखना रह गया है, दैट इज क्ले। क्ले के बाद में आपको एक क्लियर वाटर दिखाई देगा, और उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपको बिल्कुल फ्लोटिंग दिखाई देगा। जो वाटर की क्लैरिटी होती है, इस वाटर की क्लैरिटी भी आपको ये बताती है कि इसमें कितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो किसी और दिन समझाऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वाटर थोड़ा धुंधसर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, तो चिंता ना करें, फिलहाल हम इस बॉटल में से सिर्फ मिट्टी के कॉम्पोजिशन को समझ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंपल जार टेस्ट। उससे आपको क्या पता चलेगा, आपकी मिट्टी में कितना % सैंड है, कितना % सिल्ट है, कितना % क्ले है, और कितना % ऑर्गेनिक मैटर है। अब वो परसेंट कैसे समझेगा, तो आप इस बॉटल के साथ में फर्श पे यहाँ पर एक स्केल पकड़े, सेंटीमीटर वाली स्केल, और उस सेंटीमीटर वाली स्केल पे ये देखें कि कितना सेंटीमीटर ग्रेवल है, कितना सेंटीमीटर सैंड है, कितना सेंटीमीटर सिल्ट है, और ये जो फ्लोटिंग मैटर है ये पानी के ऊपर कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर है, उसका रेशियो प्रोपोर्शन निकाले, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली आपके नीचे का सॉइल का कॉम्पोजिशन जो भी हो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम से कम 3% होना चाहिए, 3%। Why is our soil dead today, and why Sadhguru has taken the world tour to say save soil, or why is United Nation has given a 16-point goal agenda for sustainable living, SDG जिसको बोल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव करने हैं, वो 6 या 7 पॉइंट वो दिए हैं उन्होंने गोल्स, और उसमें 16-17 पॉइंट उसमें एजेंडा कैरेक्टरिस्टिक्स करके उन्होंने डिफाइन करे हुए हैं। बिकॉज the organic matter content of the entire agricultural land in the entire world has reduced to 0.03% या 0.3% या 0.1%। तो हमको कितना चाहिए, 3% चाहिए, बस 3% पे पृथ्वी पूरा फॉरेस्ट बना के देती है आपको। हमने उसको भी मार मार के 0.03 तक उसको डिग्रेड कर दिया है। ऑन एन एवरेज इट इज 0.3, माने 10 से 100% हमने पूरे ऑर्गेनिक मैटर को मार दिया है। सो आपके सॉइल में अगर ये
इवन अबाउ 1% ऑर्गेनिक मैटर है तो आपकी सॉइल बहुत अच्छी है, उसमें बहुत कम खाद आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी सॉइल पूरी सैंडी है तो इसको थोड़ा सा क्लेई की तरफ करना पड़ेगा। अगर आपकी सॉइल पूरी क्लेई है तो आपको इसको लोम की तरफ करना पड़ेगा। अब ये क्यों, हर सॉइल बदलने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आइडियल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड इज लोम सॉइल। लोम माने दो मठ मिट्टी, दो मठ मिट्टी माने एक मठ हो गया सैंड की तरफ बड़ा पार्टिकल साइज, एक मठ हो गया क्ले दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज। सो इन दोनों का जब बराबर का मिश्रण होता है 50% सैंड एंड 50% क्ले इज कॉल्ड लोम, विच इज आइडियल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ग्रोइंग फूड और फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। सो हमको उस आइडियल लोम की तरफ लाना है। इसलिए आपको अगर ये परसेंटेज जान जाएंगे, अगर आपके इसमें सैंड ज्यादा है तो आपको थोड़ा छोटा पार्टिकल वाला मैटर ज्यादा डालना है, अगर आपके पास पूरा क्ले है तो आपको बड़े पार्टिकल वाला मैटर ज्यादा डालना है। दैट्स इट, अ सिंपल जार टेस्ट। दूसरा, आप लिटमस पेपर जो आजकल किसी भी स्कूल शॉप में या मेडिसिन शॉप में या स्कूल लैबोरेटरी जहाँ पर केमिस्ट्री की वगैरह इक्विपमेंट्स आते हैं वहाँ पे, या ऑनलाइन भी मिल जाता है लिटमस पेपर का सेट मिलता है आपको। सो वो अगर आप अपनी मिट्टी को थोड़ा अलग तरीका है उसका, डिस्टिल्ड वाटर वगैरह सब कुछ करोगे तो आपको सॉइल का पीएच भी घर बैठे पता चलेगा, आपको किसी सॉइल टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सो आप अपनी आंखें, अपना हाथ, अपने नाक, उसके बाद एक छोटी सी बॉटल, थोड़ा सा पानी और मिट्टी, इनको यूज करके आप खुद में एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी हो टू अंडरस्टैंड योर सॉइल, व्हाट इज इट सुटेबल टू ग्रो। सो देयरफॉर वी नीड टू टेस्ट सॉइल। सॉइल कलर के बारे में मैंने बताया आपको। सो हमारे पास ये देखिए, ये पूरा अरावली का बेल्ट है। अभी यहाँ पे ये 3 आइडियल सॉइल कलर्स मैंने बताए। सिचुएशन क्या है? ये है सिचुएशन। ये पूरा अरावली का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के पार्ट में जो अरावली फैली हुई है उसमें हमारे सॉइल के कलर्स जनरली ये कलर्स हैं। तो ये कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं? हमारे यहाँ पर जो हरियाणा की सॉइल है वो क्या है? पीली सर है। आप यमुना की तरफ जाइएगा, यमुना में भी आपको हरियाणा के पार्ट में जो सैंड मिलेगी वो येलो सैंड मिलेगी, और जो उत्तर प्रदेश के तरफ सैंड मिलेगी वो ग्रेइश और ब्लैकिश सैंड मिलेगी। व्हाट डज दिस इंडिकेट? मैंने आपको बोला कि मिनरल्स पता चलते हैं आपको। अगर रेडिश कलर की सॉइल है तो उसमें आयरन ऑलरेडी है, उसमें मैंगनीज ऑलरेडी है। अगर आपकी येलोइश या येलोइश ब्राउन कलर की सॉइल है तो उसमें आयरन ऑलरेडी है, आयरन कुछ और फॉर्म में है। ये जो व्हाइटिश आपको पूरी बाउंड्री दिख रही है ये पूरी कैल्शियम वाली, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। किंतु हमारे गार्डनर्स ये जो व्हाइट सॉइल वाला बेल्ट है ना, वहाँ से मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरे टमाटर नीचे से काले हो गए हैं, तो मेरी सॉइल में कैल्शियम कम था तो मैंने ऊपर से चूना डाला। अब सर पे हाथ मारने के बजाय मेरे पास कोई वो नहीं होता। तो इस तरह से सब्जियां नहीं उगेगी आपकी, इस तरह से आपका मेंटेनेंस फ्री गार्डनिंग नहीं होगा। समझ के गार्डनिंग कीजिएगा। इसलिए पहले अपनी मिट्टी को देखिएगा। और जहाँ अगर ये कितने दिख रहे हैं मेरे को, 54 लोग दिख रहे हैं। सो 54 लोग अगर यहीं से दिल्ली एनसीआर से अगर हम हैं तो हमारे पास, आप ये सोचिएगा कि हमारे पास आयरन कंटेंट्स की मिट्टियाँ हैं, उसको बोलते हैं FeOOH, माने हाइड्रो सॉल्यूबल आयरन फॉर्म, हाइड्रोक्स क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेटेड आयरन हमारे सॉइल में ऑलरेडी है। और उस सॉइल में हमको काम करना है वो जो आयरन है। और हमारी सॉइल्स बेसिकली वो शायद ग्राफ मैंने डाला नहीं वरना बहुत टेक्निकल हो जाता। सो बेसिकली हमारी जो ये सॉइल्स हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास की, ब्रॉडली बता रही हूँ मैं, डोंट टेक मी ऑन रिकॉर्ड, ब्रॉडली हमारी सॉइल्स 7 pH एंड अबव है। क्योंकि जहाँ पर भी ये हाइड्रेटेड आयरन इस सॉइल में होता है, जहाँ पर भी ये पीले रंग की मिट्टी आपके पास में होती है, पीली या थोड़ी पीली ब्राउनिश येलो जिसको कहते हैं, उसमें हाइड्रेटेड कार्बन होने की वजह से इस सॉइल का पीएच हरदम 7 से 12 के बीच में होता है।
अब आइडियल पीएच आपके सॉइल का क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ब्रॉड ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर, जो फूड हम खाते हैं, उस फूड को, मैं खास करके फूड की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर आप फूड ग्रो करना समझोगे तो आपको बाकी सारा समझ जाएगा। सो उसके लिए आइडियली आपके सॉइल का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, जहां पर मैक्सिमम मिनरल्स को पौधा ले पाता है। 7.5 से अगर वो ऊपर जाता है तो बहुत सारे पौधे मिनरल्स को नहीं ले पाते, किंतु कई सारे ऐसे पौधे हैं जो 7 पीएच के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे आलू, हमारे यहाँ पर आलू बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आलू उतने अच्छे साउथ इंडिया में जहाँ पर 4.5 और 5.5 पीएच की मिट्टी है वहाँ पर नहीं ग्रो करते हैं। तो उसके बाद में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारे 7.5, 8, 8.5 तक के पीएच में बहुत अच्छे, मूली बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सो अगर आप इस तरह से समझोगे कि मेरे पास क्या सॉइल है, उसमें मैं क्या बेस्ट उगा सकती हूँ, मिनिमम एडिटिव्स डाल के, उसका पहले आप सक्सेस अगर लेंगे तो आपको आराम से पता चलेगा कि इस सॉइल को आपको किस तरह से प्ले करना है, ताकि आप एजिलिया भी उगा ले जिसको बहुत एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, और आप ड्रैगन फ्रूट भी उगा ले जिसको आप काफ़ी अल्कलाइन सॉइल में आप ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं। देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड योर सॉइल। सो व्हाट मेक्स सॉइल लिविंग, जैसे मैंने पहले ही कहा, dirt plus organic matter is equal to soil. This is the definition of soil. Okay, now, so what is organic matter? Why is humus required in soil? How to increase humus in the soil? Difference between manure and fertilizers, importance of manure, types of manure, role of fertilizers, types of fertilizers. Now let's see one by one. So what is organic matter? Organic matter is everything that was once alive, or everything that is right now alive. That everything is organic matter. I am organic matter right now. So what does organic matter do to dirt? Organic matter gives food to the soil life. It increases water holding capacity of the dirt. It gives shelter to the soil life, and it also allows air passage through the soil. This is what your plant's root need. आपके पौधे की जड़ों को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए और हवा चाहिए। ये चारों चीज़ें अगर आप सिंपल ऑर्गेनिक मैटर अपने डर्ट में डालते हो तो उसकी मिट्टी बन जाती है। Organic matter helps soil keep alive and function like a living being. ये इसमें इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि लीफ एंड रूट लिटर, मतलब कुछ भी पौधे के जो अवशेष है वो मिट्टी के ऊपर गिर रहे हैं, वो सड़ रहे हैं। जब वो सड़ते हैं, जब उसका कंपोस्ट बनता होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते भी हैं और अवेलेबल फॉर्म में रहते हैं। अब ये जो अवेलेबल फॉर्म होता है ना, मैंने देखा है AIKGA के जब ये पूसा के वगैरह लेक्चरर्स, दिग्गज साइंटिस्ट हमको लेक्चर देने के लिए आते थे शुरू में, तो वो ना ये अवेलेबल फॉर्म एंड अनअवेलेबल फॉर्म ये इतना बोलते थे कि मेरा माथा सुन्न हो जाता था, मेरे को कभी समझता नहीं था व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर्म एंड व्हाट इज़ अनअवेलेबल फॉर्म। लाइक इन आवर सॉइल, अरावली सॉइल ऑफ दिस रीजन, दिल्ली NCR रीजन, if there is plenty of ferrous, iron, but that is not available, what does that mean? That simply means कि आपके घर में पैंट्री है, पैंट्री में कच्चा दाल, कच्चा चावल, आटा, तेल, घी सब कुछ रखा हुआ है, किंतु आपको भूख लगने से आप पैंट्री में जाके दाल चावल कच्चे फाँकना नहीं शुरू करते हो, बिकॉज आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आपके पास सारे मिनरल्स हैं आपकी पैंट्री में, मगर वो आपके डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो फिर उसको क्या करते हो आप? फिर आटे की रोटी बनाते हो, फिर कच्चे चावल को पकाते हो, फिर उसकी बिरयानी बनाते हो, फिर जो भी, फिर तेल आप यूज़ करते हो ताकि मॉइस्चर थोड़ा नॉर्मल रहे, खाना थोड़ा ठीक से चले। सो आप कुछ फैट्स खाते हो, कुछ प्रोटीन्स खाते हो, ये सारे आपके पैंट्री में हैं। लेकिन आप ऐसे तेल उठा के 1 चम्मच पी लिया, उसके ऊपर चावल खा लिया, उसके ऊपर एक प्याज खा लिया, खीरा खा लिया और बोले जी मैंने दाल चावल सब्जी रोटी खा ली। इस तरह से नहीं होता, आपको दाल चावल सब्जी रोटी बनानी पड़ती है।
सो वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में जब आपके पैंट्री में से खाना आता है, दैट इज कॉल्ड अवेलेबल फॉर्म। सो आपकी पीली मिट्टी में आयरन बहुत है, मगर वो आपका पौधा जो है, जो बच्चा है पौधा, वो उसको खा नहीं पाता। तो कौन चाहिए उसको खाना बनाने के लिए? कुक चाहिए। सो हु आर द कुक? These microorganisms in your soil are the cook. What do? They start decomposing the organic matter. Much of it they start consuming as their own food. So in this process of decomposition, their consumption, then their consumption by their predators and the predators consumption by their predators, ये जो पूरी फूड साइकिल है, इस फूड साइकिल में आपके पैंट्री में जो अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में खाना था, वो पौधे की जड़ को डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिल जाता है। पौधा फटाफट उसको लेता है और फटाफट बड़ा होता है, हेल्दी होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ में हेल्दी होता है। That is what is the function of organic matter. Okay, so ये हमने देखा। हाँ, so soil, अभी हम dirt की नहीं बात कर रहे हैं। so जो soils होती हैं, सॉइल के अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने की वजह से पैथोजन और डिसीज रेजिस्टेंस भी पौधे में आ जाता है और मिट्टी में भी आ जाता है। सो इसलिए ये जो सॉइल एनहांसर्स, ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। सो सॉइल एनहांसर्स आर आल्सो एयर एंड मॉइस्चर एनहांसर्स एंड आल्सो माइक्रोबियल फूड एंड शेल्टर इनटू द सॉइल। Now your soil became a living being. So हमने जो देखा कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर इसमें डालना है, ये ऑर्गेनिक मैटर ये आप किस किस फॉर्म में डाल सकते हो। ओके, सो आपकी डर्ट को सॉइल बनाने के लिए आपको पता होगा ये जो डीएपी, यूरिया, एनपीके ये सब आप डालते हो, इनको फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। और जो गोबर की खाद, मुर्गी की खाद ये आप डालते हो, इनको अंग्रेजी में मैन्यूअर्स कहा जाता है। सो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं और उसके बाद में पता करते हैं कि मैन्यूअर्स कितने प्रकार के होते हैं और हम उसको किस तरह से डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और हमको क्या उसको यूज़ करना चाहिए क्या। ओके, सो बिल्कुल छोटे में मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने कंपैरिजन करके यहाँ पर लाया है। मैन्यूअर्स आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। अननेचुरल कोई भी मैन्यूअर नहीं होता। जो मिट्टी में सॉइल एनहांसर या फर्टिलिटी एडिटिव या फर्टिलिटी एनहांसर इसको करके आप डालते हो, वो मैन्यूअर जब कहते हो तो वो हरदम नेचुरल सोर्स से होता है। whereas fertilizers are generally factory made chemical. उदाहरण के तौर पे जिंक आप मैन्यूअर के थ्रू भी दे सकते हो, माने नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू भी दे सकते हो, और आप जिंक मार्केट में से खरीद के आप अपने पौधों में डाल सकते हो। सो जो मार्केट से एक फैक्ट्री मेड आपने जिंक खरीदा दैट इज़ फर्टिलाइज़र, और जो आपने नेचुरल सोर्स से लिया दैट इज़ मैन्यूअर। टू गिव यू फर्दर एग्जाम्पल कि हमको सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम को काउंटर करने के लिए हमारे पूरे भारतीय घरों में 2 टिपिकल फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि अभी भी बड़े बड़े शहरों में भी एक जो ट्रेडिशनल फार्मूला है अपना, जो नेचर बेस्ड है, उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अदरक तुलसी की चाय। थोड़ा सा सर दर्द हो गया या थोड़ा जुकाम जैसे लग गया, थोड़ा बदन थोड़ा एक दर्द जैसा लग रहा है, सो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, भाई अच्छी चाय बना दो, अदरक और तुलसी की चाय। वेस्टर्न कल्चर में ये क्या होता है, एक पिल खा लो। अब वो पिल में से भी आपको वही कंटेंट्स मिलते हैं जो अदरक और तुलसी की चाय से मिल जाते हैं। तो फ़र्क क्या है, अदरक और तुलसी की चाय में से आपको सिर्फ वो जो एक एलिमेंट चाहिए था आपके कफ को काउंटर करने के लिए, वो तो मिला ही, उसके साथ साथ आपके गले को गर्माहट मिली, उसके साथ साथ आपके पेट को फाइबर मिला, उसके साथ साथ आपकी
टंग को टेस्ट मिला, उसके साथ साथ जब आप वो गरम गरम चाय सिप कर रहे थे तो अपना ऑलरेडी एक स्टीम इनहेलेशन हो गया, क्योंकि हम ऐसे फुर्की मार के चाय लेते हैं, वो जब आप वो केमिकल की एक पिल खाते हो तो नहीं होता है। सो आपके बाकी के 4 सेंसेस को बाईपास करके आपको एक गोली दी जाती है। आप जनरली देखोगे कि जब आप दवाइयाँ खा के कफ और कोल्ड क्योर करने की कोशिश करते हो तो आपकी नाक ड्राई हो जाती है, और जब आप तुलसी और अदरक की चाय और कितने काढ़े और ये सब जब पीते हो तो आपकी नाक मॉइस्टन होके एक्चुअली कफ को बाहर निकाल देती है। ये एक उदाहरण है। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में भी यही फर्क है। जब आप मैन्योर मिट्टी में डालते हो तो मिट्टी को वॉल्यूम मिलता है, मिट्टी को मॉइस्चर मिलता है, मिट्टी के सॉइल लाइफ को बहुत सारा शेल्टर एयर मिलता है, मिट्टी को टेक्सचर मिलता है, और इसलिए आपके पौधे को खाद मिलती है। जब आप फर्टिलाइजर डालते हो तो सिर्फ आपके पौधा जो बिल्कुल स्ट्रॉ से फुर्र करके ऊपर ले सके और बाकी सब राह देखते बैठ जाए, ऐसी कोई एक चीज मिलती है। So therefore, manures always enhance the life in the soil, its porosity, its carbon value with every use. Contrary to their name, fertilizers do not make soil fertile. In fact, पूरे UN का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, आज के काफ़ी सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में अर्थ डे पे जो सॉइल के बारे में छपा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हमारी सॉइल 60-70 साल के कंटिन्यूस ऐसे ही फर्टिलाइजर्स की यूज की वजह से इनफर्टाइल हो गई है, और ये हकीकत हमको समझने के लिए 60-70 साल लग गए, जब हमने सॉइल का ऑलमोस्ट 2/3 सॉइल का सत्यानाश कर दिया है। So what are the examples of manures? Farmyard manure, compost, vermicompost, I'm sorry, vermin compost लिख दिया, I'm so sorry, leaf mold, coco peat, any dried husk, dried biomass, liquid manures, etc. And ये जो मैंने लिखा है कि इनफर्टाइल सॉइल का अगर हमारी देश में अगर उदाहरण एग्रीकल्चर में कोई देता है, सो पंजाब इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जहाँ की सॉइल सबसे ज़्यादा मर गई है। ओडिशा की सॉइल की कंपैरिजन में पंजाब की सॉइल है ही नहीं, कुछ सॉइल मिट्टी बची नहीं है, सारा डर्ट हो गया है वो, जो सिर्फ अभी एक एडिक्ट हो गई है वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को। जब तक आप वो एडिक्शन वाली चीज़ उसको दोगे नहीं, तब तक वो आपको खाना उगा के दे नहीं रही है। दैट्स व्हाट द फर्टिलाइजर्स डू टू योर सॉइल। कितना आसानी से मैं ग्रुप में पढ़ती हूँ, एप्सम सॉल्ट डाल दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर विनेगर डाल दो, फिर ये एफिड चला जाएगा, फिर और क्या क्या आप लोग डाल दो, मेलाथियन डाल दो। आई एम हैप्पी कि मेलाथियन वगैरह अभी तो गवर्नमेंट ने बैन किया है, और आपको पता होगा कि 1 मई अभी मतलब कुछ दिनों के बाद में कुछ एक 27 फर्टिलाइजर्स की लिस्ट है जो गवर्नमेंट बैन कर रही है, और मेरे को तो बैठ के एक सैडिस्टिक प्लेजर हो रहा है। 15 साल से हम लोग यही कह रहे हैं कि ये सब ना थोड़ा बिना सोचे मत यूज़ करो, क्योंकि वो सिर्फ आपके उस एक गमले की मिट्टी को नहीं खराब कर रहे हो, आपके घर के आसपास की हवा को आप खराब कर रहे हो। वो जो गमले में से नीचे पानी ड्रेन होकर नाली में चला जा रहा है, उस पानी को भी आप खराब कर रहे हो, और अपनी सेहत को आप खराब कर रहे हो। वो भले आप खाओ नहीं, लेकिन वो जो एडिक्शन आप अपनी मिट्टी को और अपने गमले को डाल रहे हो, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन हवा में होके आपके घर में आ रहा है, तो आप अपने पूरे परिवार का नुकसान कर रहे हो जाने अनजाने। ये फैक्ट है। और इसलिए जो मैं 5-6 साल पहले अभी इतना थोड़ा डर डर के मैं ये बोलती थी, क्योंकि लोग एकदम चढ़ जाते थे मेरे ऊपर। अब जब यूनाइटेड नेशंस कह रही है, अब मैं बिल्कुल छाती ठोक के ये बात कहती हूँ कि स्टॉप ऑल दिस, स्टॉप using anything without understanding your soil if you want to be a true gardener. Now, what is the difference between soil and soil mix? Just allow me, I'll sip some water and come back to you.
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड सॉइल मिक्स? जनरली जब आप गमलों में डालते हो तो आपको पता है, हम सबको पता है, और उस टॉपिक में मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोग सारे बहुत एनहांस्ड गार्डनर्स हो, बहुत आगे वाले गार्डनर्स हो। सॉरी, जिस मिट्टी में आप ही के घर के आंगन में बहुत अच्छे पौधे लहलहा के खिल रहे हैं, वही मिट्टी उठा के अगर आप गमले में भरोगे तो वो पौधा, आपके गमले में वो मिट्टी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करती जितनी आपकी ग्राउंड में करती है, यह हकीकत है। सो इसलिए खास करके जमीन के सरफेस के ऊपर जो आपको ऐड करना है सॉइल में बहुत सारी चीजें मिक्स करके, जिसको एक्चुअली हम टॉप सॉइल कहते हैं, जो मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था, वो टॉप सॉइल जो नेचुरली नहीं बिल्ड हो पा रही थी, इसलिए आपने कुछ एडिशंस करके कुछ चीजें सॉइल में मिक्स करके आपने ऊपर से डाला, उसको कहते हैं सॉइल मिक्स। देयरफॉर either you create a topsoil or that is a soil created for your containers. Example is Amrit Mitti. So Amrit Mitti is topsoil or it is a special soil created for containers. Now what is Amrit Mitti? You can see my videos on YouTube or even Doordarshan Kisan. Yeah. What is organic matter? As I said, anything that was once alive. कॉम्पोस्टेड, अनकॉम्पोस्टेड, मैन्यूअर्स, एवरीथिंग। पत्ता कभी जिंदा था, अभी सड़ गया है, उसकी खाद बन गई। गाय ने कोई चारा खाया था, वो चारा वो जिंदा था, उसके खाने के बाद में जो उसकी शिट में आया वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। जो हम इंसान खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, लाइव चीज़ें खाती हैं, लाइफ खाते हैं, इसलिए हमारा भी जो एक्सक्रीटा है दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक मैटर। ओके, so dry leaves, twigs, wood chips, बहुत कुछ composted matter, uncomposted matter, anything. Now these manures are of two types, solid and liquid. So what are solid manure? Generally an urban gardener can use. It can be farmyard manure, it can be leaf mold, and it can be compost. So farmyard manure is क्या है? फार्म यार्ड। फार्म यार्ड में क्या क्या होता है? फार्म यार्ड में पौधे होते हैं, पौधों के अवशेष होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, जानवरों के अवशेष होते हैं, जानवरों का एक्सक्रीटा होता है। सो ऐसे सारे जानवर जो फार्म पे पाले जाते हैं, उनका जनरली एक्सक्रीटा जब सड़ जाता है तो उसको फार्म यार्ड मैन्यूअर कहते हैं। किंतु अगर आपके फार्म पे कुत्ता है तो कुत्ते के पूप का खाद फार्म यार्ड मैन्यूअर कहा जाएगा क्या? वो आपके सॉइल के लिए उस क्वांटिटी में आप डाल सकते हो क्या? उत्तर है नहीं। टेक्निकली फार्म यार्ड मैन्यूअर माने रॉटन डंग ऑफ एनी रूमिनेटिंग एनिमल, जो जानवर जुगाली करता है। जनरली उस जुगाली करने वाले एनिमल का डंग जब सड़ जाता है तो उसको मैन्यूअर करके यूज़ करते हैं। अभी इसमें भी इतने सारे सवाल आते हैं कि मेरे पास तो चिकन की खाद है, मेरे पास कबूतर की खाद है, मेरे पास मेरे को कहीं रास्ते में मैं जा रही थी तो मेरे को बकरी की खाद मिली, तो मैं ये गोबर की खाद मिली, तो मेरे को मैं क्या डालूँ, कितना डालूँ, तीनों डालूँ, क्या? समझ लीजिएगा, जनरली एग्रीकल्चर में या गार्डनिंग में तो होता ही है, मेनली एग्रीकल्चर में ये 3 सेक्शंस करे हैं मैंने। देखो, काऊ, बफेलो, हॉर्स का एक सेक्शन किया है फार्म यार्ड मैन्यूअर में, गोट, शीप का दूसरा सेक्शन किया है, और चिकन या एनी बर्ड, कबूतर वबूतर जो आपके पास में होंगे, उनका तीसरा सेक्शन किया है। सो आप ये सोचिएगा, ये जो कैटल होती है, काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये जनरली क्या खाते हैं? ये खाते हैं अ मिक्स ऑफ ब्राउन हार्ड मैटर, माने जैसे गेहूं की कुट्टी, बाजरे की कुट्टी, तूड़ा, तूड़ी, जो आप हार्वेस्ट करने के बाद में जो प्लांट रिमेन्स होते हैं वो खाते हैं, या तो घास खाते हैं। सो अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन। गोट और शीप क्या खाते हैं? गोट और शीप सिर्फ पेड़ की नई कोपले खाते हैं, वो हार्ड मैटर नहीं खाते, वो वुड नहीं खाते, वो जो ब्राउन मैटर गोट और शीप नहीं खाते। और बर्ड क्या खाते हैं? अक्सर दाना खाते हैं। इसलिए इन तीनों के डंग में जो अवेलेबल
मैटर है या मिनरल्स हैं, जो तत्व है, ये अलग अलग होते हैं। इसलिए प्लीज ये कभी भी मत सोचिए कि एक खाद कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर खाद। आपको मिलता है तो आप तीनों भी डालें, कितनी मात्रा में डालें, सबसे ज़्यादा। जैसे आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कहाँ से मिल रहा है? गाय, भैंस, घोड़ा और गधा भी, इनसे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैलिड चीज़ें खाते हैं। आपको कम किससे मिल रहा है? गोट और शीप से। किंतु गोट और शीप की मैन्योर में आपको जिंक की मात्रा काफ़ी मिलती है, क्योंकि पौधे की नई कोपलों में जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। जितना ओल्ड और ब्राउन होता जाएगा उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जितना ग्रीन होगा उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस तरह से हर अलग अलग सेट ऑफ एलिमेंट्स, मैं एक एक उदाहरण दे रही हूँ, आप ये मत समझिए कि वही उसमें होता है। सेट ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको इनके डंग में अलग अलग मिलते हैं। चिकन और बर्ड क्या खाते हैं? दाना खाते हैं, दाना। न वो घास खाते हैं, न वो कोई सूखी हुई टहनी खाते हैं। तो इसलिए चिकन और बर्ड के इसमें हमको क्या मिलता है? पूप में क्या मिलता है? हमको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन माने क्या हो गया? फिर से नाइट्रोजन हो गया। सो अगर आपको हाई नाइट्रोजन मैन्योर कोई डालना है तो आप क्या डालोगे? चिकन मैन्योर डालो, फॉर एन एग्जाम्पल। आपको इसलिए मैं इसको सेग्रीगेट करके बता रही हूँ। लीफ मोल्ड, लीफ मोल्ड माने मेड ओनली फ्रॉम ड्राई लीव्स, which takes a long time, almost 2 to 3 years to make it a mold. Why is it called mold? Why is it not leaf compost? हमारे ब्रेड के ऊपर जो फंगस आती है उसको हम क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। So what is mold? Mold is a fungus. So leaves, brown leaves, rotten by using some fungus. You don't have to use. That fungus naturally comes into your pile of leaves. When you do not add any greens and yellows to your dry leaf pile, and you do not add any other liquid manure or accelerator, you just add some water and dry leaves pile and you leave it for a longer time, say 1 year, 2 year or 3 years, automatically some natural fungi creep into that pile and then they create decomposition, and therefore it is called leaf mold. So how is leaf compost and leaf mold different is this example. So compost can be of kitchen waste compost, vermi compost, commercial compost, biogas slurry or even your leaf compost. But please understand, leaf mold and leaf compost are two separate things. सो प्रिपेयर योर ओन लीफ मोल्ड एंड कॉम्पोस्ट। इसके नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, ये मेरा वीडियो है शायद, हाँ ये मेरा ही वीडियो है, जो मेरे चैनल पे लीफ मोल्ड आप किस तरह से तैयार कर सकते हो उसका एक छोटा सा इसमें डिटेल है। नाउ अभी आपको ये सारा जो भी मैंने सारा इतना सारा टेक्निकल मैटर समझाया, उसमें अगर आपको अपना सॉइल मिक्स बनाना है, सो एक जनरल 3 बेसिक फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। आप या तो स्क्रीन का शॉट ले सकते हैं या मेरे हर लेक्चर के बाद में ये टेबल मैं जनरली शेयर करती हूँ। सो ये टेबल मैं दीपा को भेज दूँगी। दीपा जो भी आप लोगों का ग्रुप होगा उसमें ये टेबल आप दीपा प्लीज शेयर कर दीजिएगा। सो इसमें 3 जो मेन सेक्शंस जो एक गार्डनर ग्रो करता है, आउटडोर प्लांट्स के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, इंडोर प्लांट्स के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, फास्ट ड्रेनिंग सॉइल मिक्स के लिए जैसे कैक्टस, सक्यूलेंट, कॉडेशियस प्लांट्स, इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए। और प्लीज़ ऊपर पढ़िएगा, मैंने लिखा है ब्रॉडली फॉर नॉर्थ इंडिया। आपको मेरा इतना 45 मिनट के ऊपर का लेक्चर सुन के ये पता चल गया होगा। आई एम सो सॉरी, दीपा इज स्माइलिंग, दीपा इज लाफिंग। दिस somebody is written आज तो मैं PhD करके बन जाऊंगा। आई एम सो हैप्पी। PhD करके अगर पौधे बहुत अच्छे उग जाएंगे, सो प्लीज यू नो गिफ्ट इट टू मी एंड I'll hug you. Yeah, sorry. Yeah, so I'm No, but while you are telling this, Purnima ji, do tell how to use the your bagasse, sugarcane stuff to add on to your composting. Yeah. So just let me just 2 more slides. I'm Yeah, saying yeah. 2 more slides and then I'll yeah.
सो ये आप टेबल आप शेयर कर देना, और प्लीज़ नोट कि मैं ब्रॉडली नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए जो आप लोग ये यूट्यूब देख के यूरोप की मिट्टी यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और उसने कुछ डाला तो आप यहाँ पर डाल के वो करते हैं, आप वो गलती ना करें। लोकल करें, नेटिव करें, आपके रिसोर्सेज के साथ करें और आपकी मिट्टी के लिए करें। आप अपने बच्चे को डिस्कार्ड करके कहीं बाहर से एक बच्चा खरीद के नहीं लाते हो ना, आप अपने वैल्यू सिस्टम के साथ में अपने बच्चे को डेवलप करते हो, उस तरह से प्लांट ग्रो कीजिएगा। दैट इज जनरली मेंटेनेंस फ्री और लो मेंटेनेंस गार्डनिंग। या सो लिक्विड मैन्यूर्स में अमृत जल, कॉम्पोस्ट टी, बायो एंजाइम्स। अभी इसके नीचे भी मैंने अपनी अपनी यूट्यूब की शायद लिंक शेयर करी है, सो ये भी स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वेरी सिंपल फार्मूला, और ये अगर यूट्यूब वीडियोज़ आप देखोगे तो आपको बार बार देखने का, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच येस फॉर लिसनिंग टू सच टेक्निकल, क्योंकि दीपा ने जब मुझे बोला कि थोड़े गैप्स फिलअप कर देना, मुझे लगा हाँ ये मौका है जो मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ लोगों को बताऊँ। सो नाउ दैट्स वेरी यूजफुल जो आपने बताया। मेरे को आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे कि जनरली जो हमारे ग्रुप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिस तरह नर्सरी से वो प्लांट्स लेके आते हैं, मोस्टली बाहर से आते हैं या चिकनी मिट्टी है, तो क्वेश्चन ये आता है कि उसको बिल्कुल साफ करके उसकी रूट बॉल फिर इधर के लोकल मिक्स से स्पॉटिंग मिक्स में मिलाएं, या कैसे करें ताकि प्लांट जनरली या तो शौक से चला जाता है या हमारी मिट्टी पे एडजस्ट नहीं करता तब चला जाता है, तो एक वो लॉस हो जाता है। तो आप ये बता दीजिए। थैंक यू दीपा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मिक्सिंग सॉइल्स, यू नो। आपको पता है अक्सर पौधे जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा इनमें आते हैं, सो मैं एक इसमें थोड़ा मैं मेरी तरफ से मेरा अनुभव ऐड करना चाहूँगी कि आप ना नर्सरी वाले सेलर से, नर्सरी के ओनर से आप थोड़ी प्यार मोहब्बत की भाषा रखें उसके साथ में। जब आप उससे बातें करने लगोगे ना, तब वो आपको ऑनेस्टली बताएगा कि ये पौधे का सोर्स क्या है। प्यार से पूछो कि अच्छा भैया ये पौधा कहाँ से आया, आपको क्या पता चलता है इससे, आपको क्यों पूछना है। ये मिट्टी देख के तो आपको पता चल रहा है लाल मिट्टी है तो भैया या तो पुणे से आई होगी या तो बैंगलोर से आई होगी, लेकिन पुणे से आई है या बैंगलोर से आई है, अभी आप इसको जान के क्या करोगे। आपको ये पता चलेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर वो फरवरी महीने में पुणे से पौधा आ रहा है तो माने पुणे में उस बंदे ने नवंबर या अक्टूबर में वो पौधा सो किया होगा, वो पौधा लगाया होगा या कटिंग करी होगी या टिश्यू कल्चर किया होगा। जब वो पूरा अपने लाइफ पे आ गया है तब वो फरवरी में आपके पास में आ गया है। तो आपको उस पौधे को अपने घर में लाने के बाद में किस तरह का क्लाइमेट देना चाहिए, जो पुणे में अक्टूबर नवंबर में था या दिसंबर में था, वो अगर क्लाइमेट दोगे तो पौधा आपका लंबा चलेगा। इसलिए नर्सरी वाले से बात कीजिएगा। दूसरा, देखिए इतने साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, फिर भी बहुत कम पौधे नर्सरी से लाए हुए ट्रांसप्लांट करते समय मैं बेयर रूट करती हूँ। प्रिंसिपली मुझे बहुत अगेंस्ट लगता है वो, इसलिए भी लगता है कि अगर एक पौधा बैंगलोर से बन के गुड़गांव या नोएडा में या फरीदाबाद में आ रहा है, तो वो बेचारा जो उसका नोन एनवायरनमेंट है, बैंगलोर तो छूट गया, उसकी हवा छूट गई, उसका पानी छूट गया, तो वो किसके सहारे अपने आप को स्ट्रगल करके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लेकर आ रहा है? सॉइल के सहारे। सो वो सॉइल सडनली आपके घर में यहाँ आने के बाद में आप अगर वो बेयर रूट करोगे, सो इट इज लाइक कि बेटा तू किसी भी बैकग्राउंड से होगा, तू अपना सारा पिछला भूल जा और तू अब मेरे घर में आ गया है तो मेरे घर के तरीकों से रहने लग। सो वो जो शख्स जिस शौक से गुजरता है, आपका पौधा भी उसी शौक से गुजरता है। तो करना क्या है? 3 रूल मैंने जो यहाँ के नर्सरियों के जनरली देखे हैं। या तो वो सैंडी सॉइल आती है जो जनरली लखनऊ की तरफ से आते हैं, वो बिल्कुल ऐसा आता है। कई पौधे आते हैं, इवन गुलाब की कटिंग्स, कई पौधे अगर वो लखनऊ से आ रहे होंगे तो सैंड में लग के आती है। या तो वो कलकत्ता साइड से आती है, बिल्कुल जो काली चिकनी मिट्टी आती है, और या तो वो बैंगलोर या पुणे की तरफ से आते हैं जो लाल मिट्टी में आते हैं। कई पौधे अपने यहाँ पर उत्तराखंड से भी आते हैं।
सो आपको बिल्कुल जो ग्रेवली माउंटेनियस सॉइल दिखेगी वो आप समझ जाओ कि वो उत्तराखंड से आए। कई सारे सक्यूलेंट्स आजकल उत्तराखंड से आने लगे हैं हमारे पास में। सो बहुत सारी ग्रेवली उसकी सॉइल होती है। आप इसको ट्रांसप्लांट करते समय क्या करें, अगर पूरी चिकनी मिट्टी में आ रहे हैं सो क्या है, जनरली क्ले जो काले कलर की होती है और हमारी जो पीली मिट्टी, इन दोनों का आपस में बनता नहीं, ज्योग्राफिकली भी नहीं बनता, जियोलॉजिकली भी नहीं बनता है, ऑर्गेनिक मैटर के तरीके से ही सिर्फ बन पाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो बहुत चिकनी मिट्टी में कोई पौधा आता है तो उसका बाहर से मैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रूट बॉल निकाल देती हूँ, क्योंकि चिकनी मिट्टी, हमारा जो पानी है वो पानी भी बहुत हार्ड वाटर है। सो वो हार्ड वाटर और चिकनी मिट्टी आर अ बैड कॉम्बिनेशन। इसलिए चिकनी मिट्टी हो तो मैं आधा रूट बॉल निकाल देती हूँ। अगर माउंटेनस मिट्टी हो तो मैं बिल्कुल रूट बॉल नहीं निकालती हूँ, वैसे की वैसे, बिकॉज दैट्स द बेस्ट सॉइल। वैसे की वैसे मैं अपने गमले में उसी तरह की सॉइल लगा के लगाती हूँ, बना के लगाती हूँ। अगर लाल मिट्टी है तो मैं लाल मिट्टी और सैंडी मिट्टी, इनका मैं 1/3 रूट बॉल निकालती हूँ। सिर्फ फीडर रूट्स जितने एक्सपोज हो जाए उतने फीडर रूट्स को मैं एक्सपोज करती हूँ मैक्सिमम 1/3 निकालने के बाद। फिर मैं उसको कट करती हूँ और फिर अपनी यहाँ की लोकल ऑर्गेनिकली रिच मिट्टी में मैं उसको ट्रांसप्लांट करती हूँ। हैंड शेकिंग बहुत जल्दी हो जाता है। Okay. Next question there is in the chat section, Purnima ji. हाँ How do we use the sugarcane husk? So sugarcane husk is the handiest and easiest available source of organic topsoil for gardeners. शुगर केन हस्क को आप इस सीजन में, अभी जैसे आप सड़क पे चल रहे होंगे तो वो बेचारा वो गन्ने का जूस बिक रहा है और वो ना सारा कूड़ा करकट वहीं पे डालता है जहाँ पे वो खड़ा रहता है, और वो चाहता है कि कोई ये शुगर केन हस्क में से ले जाए। शुगर केन हस्क को जहाँ आपको यूज़ करना है समर में आप उसको मल्च करके यूज़ करें। फिलहाल आप सिर्फ अगर अमृत मिट्टी बना रहे तब भी ऊपर मल्च करें, आपके गमलों में भी मल्च करें, ग्राउंड में भी मल्च करें, हर पेड़ के नीचे मल्च करें। मल्च करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसको पूरी तरह से सुखा लें, बिल्कुल ड्राई हो जाने दें, उसके बाद में आप उसको मल्च करें, और नहीं क्योंकि वो तो उसके पास से आप लेकर आओगे तो बहुत सारा मॉइस्चर उसमें होता है, फिर वो सड़ने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, शुगर केन हस्क को पानी में डुबा के रखती हूँ, बिल्कुल इमर्स करके रखती हूँ 3 दिन तक, और उसके बाद में फिर वो 3 दिन के बाद में शुगर केन हस्क निकाल के मेरे पूरे जितना सॉइल एक्सपोज्ड है मेरी, चाहे गमले में है चाहे ग्राउंड में है, उसको मैं मल्च कर देती हूँ, और वो पानी फेंकती नहीं हूँ। दैट पानी इज अ वेरी गुड माइक्रोबियल फूड। सो हर हफ्ते के बाद में इसी पानी का 1-1 मग्गा उठा के और मैं उसी मल्च के ऊपर दोबारा दे देती हूँ, हफ्ते में 1 बार। Okay. Right, that's very useful. So then it turns out to be ready-made manure by the time you have time for potting or putting in the seeds for the next season. Yes, by the time August or September, you will not, recognize your own soil. It will be dark black, it will be porous, and it will be smelling sweet. That is what is the topsoil. Right. अच्छा, then there's another question कि चलिए घर की मिट्टी तो हमने बदल ली. हाँ. This is slightly offbeat, but this is a question that I'm raising it. हाँ. घर की मिट्टी तो चलिए हमने बदल ली, but एक किसान अपने खेत की मिट्टी में ये रिविजन कैसे कर सकता है, जो हमने कहा कि अगर अपनी लोकल मिट्टी पहचाने कि उसकी नेचर कैसी है और उसको कैसे टेक्सचर को इम्प्रूव करें, तो वो कैसे किया जा सकता है? दीपा, किसान को अपनी मिट्टी को बदलना पड़ेगा। मैं खुद अपने खेत से मैंने 3-4 एपिसोड्स लिए हैं छत्तीसगढ़ में, जो मैंने अपना एक नया खेत खरीदा है पिछले 1 साल से, पिछले अप्रैल में मैंने खरीदा था, तब से लेके इस अप्रैल तक मैं सिर्फ अपने खेत की मिट्टी ही बदलने का काम कर रही हूँ। आसान तरीका जो है, आपकी जो फसल आ गई, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में मेरे आसपास के जितने किसान हैं, 5-6 किसान, 1 साल से जब भी मैं उनको मिल रही हूँ, मैं सिर्फ उनको यही बता रही हूँ कि अभी आपने गेहूं काट लिए हैं और ये जो आपकी गेहूं की पराली आपके खेत में पड़ी हुई है, आप उसको पड़े रहने दो जब तक आपको कुछ उगाना नहीं है। आपको जो भी उगाना है उसके 3 हफ्ते पहले उसी पराली को आपके खेत में रोटावेट कर दो, रोटावेटर चला दो आप,
और उसके बाद में अमृत जल छिड़को। मैं अपनी खेत में यही सब करके आई हूँ। अभी मई के फर्स्ट वीक में मैं फिर से जा रही हूँ, दूसरा राउंड ऑफ अमृत जल और दूसरा राउंड ऑफ रोटावेटर में उसमें चलाऊंगी। अब आप अगर बोलोगे कि अच्छा आपको 1 साल लग गया तो हमको भी 1 साल लगेगा, फिर तो हम खेत में खाएंगे क्या? नहीं, मैं दिल्ली से बैठ के छत्तीसगढ़ मैनेज कर रही हूँ, इसलिए मेरे को ये टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप इसको हर सीजन में कर सकते हैं। आपने सरसों हार्वेस्ट कर ली, सरसों वहीं पे रोटावेट कर दीजिएगा। आपने सब्जियां हार्वेस्ट कर ली, जो भी बचा हुआ है वहीं रोटावेट कर दीजिएगा। दैट्स हाउ यू चेंज योर सॉइल। विथ एवरी हार्वेस्ट यू आर रिच। Right, that's what it is. Then it works out that way. Yes. Any more questions? Please put in the chat. In the meantime, Purnima ji, I think garbage to green group में से एक कोई lady है, प्रतिभा सांके। तो जैसे कि आपने वो एक शेड की ना अपनी फॉर नॉर्थ इंडिया करके जो आपने अभी एक वो करा था, तो वो कह रही थी महाराष्ट्र की भी शेयर करिए। अच्छा तो अच्छा, आप किसी टाइम जब आपको मिले तो आप गार्बेज टू ग्रीन्स में आप या शुभांकर शेयर कर लेना। जरूर जरूर। सो प्रतिभा, महाराष्ट्र में आप कौन से इलाके से है वो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको गार्बेज टू ग्रीन्स में मैं सारा आपको बता दूंगी। आप मिट्टी का फोटो भी डालें और कौन से इलाके से है। हाँ जी, किसी ने लिखा है। And then there's some gentleman who's been texting in between. Sugarcane husk का प्लीज शॉर्ट में बता दे, मेरा नेटवर्क चला गया। You can read the questions on your laptop which are coming. And there's one gentleman desperately seeking your personal number. Okay. So Saif Rahman. Okay, so I have 2 acres of land for 2 years only. कहाँ गया? Who is this? Okay. कहाँ गया? सैफ रहमान जी, आपका सवाल कहाँ गया? Yeah. So I have 2 acres of land for 2 years only. So how should I work to get profit? फ्लडी एरिया है, वहाँ 8 से 12 इंच हाइट के बेड बनाकर काम करना है। तो आपने खुद ही रहमान जी अपने सवाल का जवाब दे दिया। हर दम रेज्ड बेड में काम करे, और अगर फ्लडी एरिया है तो रेज्ड बेड आपके और काम के हैं। 2 एकड़ लैंड को आप एक बात खेत में समझिएगा, जो मैं अपने खेत में भी कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने खेत में किस तरह से डेवलप कर रही हूँ, मैं एक वाइडर लोगों के साथ में शेयर करूँ। धीरे धीरे हर स्टेप का मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ। खेत को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने के लिए आप सिर्फ रेज्ड बेड्स बना के काम नहीं चला सकते। आपके खेत पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग होनी चाहिए और आपके खेत में क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। उसके बगैर आपका खेत ऑर्गेनिक करके आपको एक सीजन में प्रॉफिट दे सकता है या फायदा दे सकता है, दूसरे सीजन में मुश्किल हो जाएगा। सो क्रॉप रोटेशन जो है एनपीके मैं हरदम बताती हूँ, वो भी आपको करना पड़ेगा। जहाँ पर आपने एक बार गेहूं लगाए, वहाँ पर दूसरी बार आपको समझो कुछ ज़मीन के अंदर का आलू लगाना पड़ेगा। आलू के बाद में फिर आपको बिना पानी की पैडी करनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग माने आपके खेत पर पेड़ भी हो, क्रॉप भी हो, वेजिटेबल भी हो और एनिमल्स भी हो, एनिमल्स ऑफ योर चॉइस फॉर फार्म। जैसे मैं जब खेत पे रहने जाऊंगी या अभी 1 साल के बाद में जब मैं एनिमल इंटीग्रेशन मेरे खेत पर करूंगी, तो मुझे दूध के लिए भले गाय मिले नहीं मिले, किंतु मैं बहुत रेगुलर अमृत जल का यूज़ करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि किसी गौशाला से मैं ड्राई काऊ खरीद लूँ, वो गौशाला की भी सेवा हो जाएगी, गाय की भी सेवा हो जाएगी। मैं उस गाय को बिल्कुल धष्ट पुष्ट अच्छे से खाना खिलाऊं, जो पूरा एक फॉडर एरिया मैं अपने खेत में बना रही हूँ, और उसका मुझे तो सिर्फ गोबर गोमूत्र चाहिए। जितना अच्छा गोबर चाहिए उतना अच्छा मैं उस गाय को खिलाऊंगी। सो इतना इंटीग्रेटेड फार्मिंग रहमान जी जब तक आप नहीं करोगे, तब तक कंटिन्यूस ऑर्गेनिक से सक्सेस नहीं होगा। ऑर्गेनिक बिट्स एंड पीसेस में करके ही हमने अपने आप को बदनाम कर लिया है कि केमिकल फार्मिंग चलता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं चलता। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने बहुत एक डिसहार्टन्ड वे में करी है, बहुत बैंडेड की तरह करी है। इट डजंट वर्क। ऑर्गेनिक में योर एंटायर फार्म एंड इट्स इकोलॉजी शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स। मॉइस्चर होना चाहिए, कम से कम 4 लेयर की प्लांटिंग होनी चाहिए, टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट, देन थर्ड एंड देन द ग्राउंड कवर।
उसके बाद सन डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने करना चाहिए। जब ये पूरा करोगे तब जाके आपकी पूरी लैंड ऑर्गेनिक होगी। फिर शुगर केन, पूर्णिमा, देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग जीवामृत एंड ऑल, वो उसके लिए तो आपका लिंक है ही, आपका चैनल एनरिच सॉइल एंड सोल पे आपने जीवामृत ये सब बना के वीडियोस पोस्ट करे हुए हैं, सो दे कैन लुक एट दैट। या सो जीवामृत मैं नहीं बनाती हूँ। किसने पूछा है, तेजस है कोई, सो तेजस जीवामृत नहीं बनाती हूँ मैं, अमृत जल बनाती हूँ। दोनों में फर्क क्या है, जीवामृत में स्टार्च यूज किया जाता है, या तो बेसन या तो मैदा या आटा आपको कुछ डालने के लिए बताया जाता है। मैं बहुत आलसी, हाँ मैं बहुत आलसी गार्डनर हूँ, तो मेरे को थोड़ा जितना कम डालने को बोले उतने में खुश रहती हूँ। सो मैं अपना गोबर गोमूत्र गुड़ पानी इसमें खुश हूँ, मेरे को 10-12 साल से इसी में रिजल्ट आ रहे हैं, तो कभी मैंने जीवामृत बनाया नहीं, अमृत जल मैंने जरूर बनाया है। अच्छा, और दूसरा एक मनीष कुमार का क्वेश्चन है, ही हैज बॉट सम प्लॉट लैंड नियर योर, ओह सैफ रहमान इज फ्रॉम कराची, दैट वाज नाइस टू हैव यू विद अस। क्या कहते हैं, मनीष कुमार हैज बॉट फार्म एरिया नियर यमुना। आप उनके क्वेश्चन का भी जरा आंसर कर दें प्लीज, आ ही रहा होगा आपके स्क्रीन पे। मनीष कुमार, या सो नमस्कार, आई हैव जस्ट टेकन एग्रीकल्चरल लैंड नियर यमुना रिवर, सॉइल इज बेसिकली सैंडी, आई नो वी आर स्टार्टिंग फ्रेश, so we will be starting more or less fresh. My basic question is how to start basic preparation of the soil. Should I go with cow dung manure or Bajaj sugarcane waste manure which is of weed free? सो मनीष कुमार जी, आपने कितनी लैंड खरीदी है? जैसे सैफ रहमान भाई ने भी बोला कि 2 एकड़ लैंड खरीदी है। अब मनीष कुमार जी, आपकी भी लैंड अगर ऐसी एकड़ में होंगी तो उस एकड़ में आसान तरीका जो मैंने अपने खेत पे किया था, रहमान भाई आप भी सुन लीजिएगा। मैंने जैसे ही नया खेत खरीदा उसमें जाके देखा, क्योंकि मेरे से पहले जो बंदा वहाँ पर खेती करता था दबा के यूरिया, डीएपी, एनपीके, मेलाथियन और जो जो जितने भी नाम होंगे वो सारे यूज़ करता था। तो मेरे को क्या था कि एक तो 5 एकड़ लैंड में पूरा इतना बायोमास में सडनली लाऊं कहाँ से, खरीदूं तो कितना पैसा लगेगा, और दूसरा जो भी इसने यहाँ पर केमिकल्स डाले हैं उस केमिकल्स के रेसिड्यू, उसका इफेक्ट भी ज़मीन से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किए, 4 तरह के सीड्स खरीदे। 4 तरह का बहुत बड़ा रीज़न है उसमें क्यों वो 4 सीड्स मैंने खरीदे। उसमें एक था कैस्टर, माने अरंड जिसको बोलते हैं, जिसका हम ऑयल निकालते हैं, सो कैस्टर सीड्स, फिर ढेंचा सीड्स, फिर जो सान बोलते हैं या सन बोलते हैं या उसको सन हेम्प बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके सीड्स, और चौथा जो गाय भैंसों के चारे के लिए जो ज्वार उगाई जाती है वो चौथा सीड। उन चारों सीड को एक डब्बे में डाला, डब्बा हिलाया और पूरे 5 एकड़ में जहां से हम 3-4 लोग जितने उस घूम रहे थे उतने बस सीड्स फेंक दिया हमने, जिधर हमारा मन किया हमने फेंक दिया, चलने वलने का रास्ता छोड़ दिया और हम यहाँ पर दिल्ली वापस चले आए। उसके बाद जो पहली बारिश हुई उस बारिश में से वो सीड्स उगे, फिर कुछ और उगे, फिर कुछ और उगे। 3 महीने के बाद हमने जाके देखा तो हमारे आसपास के किसान डर रहे थे कि मैडम आपने ये क्या जंगल बना दिया, इसमें सब क्या खाओगे, आपका तो ज्वार भी नहीं ठीक निकला, ये भी नहीं ठीक। तो हम हंसते थे। तो हमने क्या किया, अभी जब फरवरी में हम अपने खेत पे गए, हमने एक रोटावेटर मंगवाया और जो उस खेत में सब कुछ उग के आया था उसी को रोटावेट कर दिया। सो हमारी 20 से 25% ऑर्गेनिक मैटर का काम हो गया। उसके बाद में मनीष कुमार जी, अगर आपकी ये सैंडी सॉइल है, सो सैंडी सॉइल जो जमुना के किनारे है, जो फरीदाबाद का मुझे सॉइल पता है वो भी यमुना से बहुत पास में है, उसकी भी सैंडी सॉइल है, तो हम जनरली ये कहते हैं कि पर एकड़ कम से कम 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर खाद डालो। ये जो मैंने कहा कि सीड उगाओ, बायोमास उसमें डालो, बायोमास उसी में रोटावेट करने से पहले कम से कम 3 से 4 ट्रॉली पर एकड़, कम से कम बता रही हूँ मैं, आइडियल बहुत बाद में मैं बात करूँगी आपसे, ये डाल के, और जब भी बारिश हो जाएगी उसके बाद में आप इसको रोटावेट करें। फिर हम अभी दूसरा भी हार्वेस्ट डाल के आए, हमको एक भी सीजन वेस्ट नहीं करना था, तो हम जब भी वहाँ से वापस आते हैं जो लैंड बची हुई है उसमें हम कुछ सीड्स मिक्स करके फेंक देते हैं। उसमें जो भी आएगा हम जाएंगे, काटेंगे, चॉप एंड ड्रॉप, या तो वही डालेंगे या तो रोटावेटर चला देंगे, उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। सो ये जो आपने लिखा है बजाज शुगर केन वेस्ट मैन्यूर, प्लीज डू नॉट बाय फॉर योर लैंड, प्लीज डू नॉट बाय।
सो यू ईदर बाय, अभी जो आसपास के गेहूं कट रहे हैं उस गेहूं की पराली उठा लो और गोबर खाद ले लो, और अगर नहीं तो एक सीजन अपने खेत में कुछ भी उगाओ जो फास्ट उगता है, वो ऐसा कुछ उगाओ। सो उससे उगने से क्या होता है, केमिकल पूरे रेसिड्यूज निकल जाते हैं और आपको खुद को बायोमास मिल जाता है। सो फास्ट ग्रोइंग फॉडर वैरायटी जो भी आपके रीजन में बिना पानी के, कम पानी के जो निकल जाती है, ऐसी तीनों चारों वैरायटी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ये अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको बायोमास मिल जाएगा। यस प्लीज। एक मुझे दिख रहा है शुगर केन बगास का। शुगर केन बगास का आप इस वीडियो को दोबारा देख नहीं सकते क्या दीपा? इसको बैक करके देख नहीं सकते? Have I lost the contact? Recording will be posted on Facebook as well as your YouTube. So हाँ, anybody wants to see can access there. So there's a question about which is better, Amrit Jal or humic acid. वो जो homemade humic acid है, okay, जो उपलों से बनता है। Who is this? देखो जी, which is better, दाल चावल सब्जी रोटी या खिचड़ी? अंदर जाके तो एक ही काम करेगा। नहीं, पर अमृत जल में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ह्यूमिक एसिड इज वन ऑफ द एसिड्स, सो चॉइस इज योर्स। मेरे को तो जितना थाली भर के खाना दे दो, मैं भले थोड़ा 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 लेकिन ज्यादा चाव लेके खाऊंगी। सो ये जो आप अलग अलग, मुझे ना वो मुन्ना भाई का डायलॉग याद आता है कि घुटने के डॉक्टर को पता नहीं कि दिल में क्या चल रहा है ना दीपक? सो आप जितना स्पेशलाइजेशन करोगे आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो गार्डनिंग या एग्रीकल्चर के मामले में। जनरल या तो दिल रखने के लिए वैरायटी चेंज कर लो, जैसे चीट डे होता है ना, एक वीक ह्यूमिक एसिड ट्राई कर लो, फिर देख लो वापस कितना इफेक्ट अच्छा आया। वो देखने अपना भी दिल, अपने दिल की संतुष्टि भी हो जाएगी भाई। मैं तो उल्टा कहती हूँ, भैया दाल चावल सब्जी रोटी पहले खा लो, उसके बाद में पैकेट ऑफ चिप्स ऐसे चाय के साथ खा लेना। पैकेट ऑफ चिप्स पे जियो मत। सही बात है। सही बात है। Thank you so much, Purnima. It was a lovely session, and I'm sure everybody who attended has learnt a lot. And as the gentleman from Karachi said, वो half PhD तो हो गए, बाकी वो आपके वीडियो देख देख के हो जाएंगे। क्या बात है। So साहिब thank you भाई, so very much. हाँ, इन्होंने लिखा है साहिब भाई ने, I have 2 acres on rent for 2 years. ओके जी, सो आप फास्ट कर लीजिएगा, बायोमास आसपास से ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू दीपा, थैंक यू फॉर हैविंग Thank you, and this is a certificate of appreciation that the society gives. Yeah, thank you so very much. Thank you. Yeah. So am I supposed to download this? I can send it to you on your WhatsApp. Yeah. Please send it. Okay. Thank you. Take care, and thank you once again. Bye. Happy Bye. gardening. Thank you so much. Thank you, Vivek. Thanks everyone. Thank you so much.